शुभ संध्या। मैं डॉक्टर निशान टाक इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के 597वें दिन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी अवगत होंगे कि IFPH फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में ये अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता रहा, तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी के विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के साथ होम्योपैथी ज्ञान का आदान प्रदान करना। आइए आज के इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। मैं आज के इस बैठक में मुख्य अतिथि डॉक्टर सप्तऋषि चौधरी सर का हार्दिक स्वागत करता हूं और उनका परिचय देना चाहूंगा। Dr. Saptarshi Chaudhary sir, as a professor since 2021 present, Department of Practice of Medicine, Mahesh Bhattacharya Homeopathy Medical College, Hospital, Havada, West Bengal. As a associate professor 2018 to 2021, Department of Practice of Medicine, D&D HMC Homeopathy Medical College. As a lecturer 2008 to 2018, Department of Practice of Medicine, D&D Homeopathy Medical College on Calcutta. Clinical experience since 2003 to present. Experience as a examiner 2011 to present. Perform a different level of university examination system as an examiner, paper setter and moderator of both UG and PG examination in the subject of practice of medicine under different university such as the West Bengal University of Health Science, Guwahati, Assam, the Homeopathic University, Jaipur, Rajasthan. Administrative experience, acted as head department of practice of medicine, D&D Homeopathy Medical College, Hospital, Government of West Bengal, 2017 to 2021. Acting as a head of department of practice of medicine, Mahesh Bhattacharya Homeopathy Medical College, 2021 onwards. Academic in charge UG, Mahesh Bhattacharya Homeopathy Medical College, 2021 to onwards. Acting as invite member of the drug proving committee, Mahesh Bhattacharya Homeopathy Medical College, West Bengal, under Central Counseling for Research in Homeopathy from January 2021. Acting as a member scientific review committee, ethical committee, D&D Homeopathy Medical College, Hospital, West Bengal, 2022. Acting as a secretary of institution ethical committee, Mahesh Bhattacharya Homeopathy Medical College, 2023. MD PG JRN Rajasthan Vidyapit deemed Udaipur, Rajasthan, 2007. BHMS UG University of Calcutta, West Bengal, 2003. Publications, सर के कुछ publications है deep vein thrombosis पे homeopathic medicine use a prophylaxis in Kolkata during COVID-19. Homeopathic management of the pain, stiffness of arthritic knee joint, traumatic tongue fibroma treated with individualized homeopathy medicine. A wart varicose vulgaris with burning pain, occasional bleeding treat with individualized homeopathic medicine. Today topic of use of physiognomy होम्योपैथी क्लिनिकल प्रैक्टिस। आज के मुख्य अतिथि को मैं आग्रह करना चाहूंगा कि अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। थैंक यू। स्क्रीन दिखाई दे रहा है? जी सर, दिखाई दे रहा है। ओके, थैंक यू वेरी मच। वो पहले आपने जितना जो इंट्रोडक्शन जो दिए इतना बड़ा, तो आई वाज रियली वंडरिंग वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट मी और नॉट। थैंक यू वेरी मच इन एनीवे फॉर दैट नाइस इंट्रोडक्शन। और गुरु जी का, श्री गुरु का नाम लेके मैं शुरू करना चाहूँगा। आज का जो हम लोगों का विषय जो है, ये साहनी सर ने मुझे बोले थे कि ये जो टॉपिक है इसके ऊपर थोड़ा बोलना, मुझे बोलने के लिए, और इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ IFPH के पास। और
ये आज का जो विषय है वो फेस फेस और फेशियल एक्सप्रेशन हम जिसको बोलते हैं। क्योंकि हम लोगों के पास जब मरीज आते हैं, मरीज जब हम लोगों को दिखाने के लिए आते हैं, तो हम लोग जो देखते हैं, हम जानते हैं कि हम लोगों को क्या करना है। अब जो भी पेशेंट आ रहा है, हम पेशेंट को देख रहे हैं, एग्जामिनिंग कर रहे हैं, पेशेंट को ट्रीट करने के लिए वी हैव टू गो फॉर वो पेशेंट का केस टेकिंग करते हैं। मगर मैं हम लोग सब जानते हैं कि एक होम्योपैथिक जो डॉक्टर है उनको उनका कीन ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। और कीन ऑब्जर्वेशन मैं आग्रह करना चाहूंगा आज का टॉपिक के लिए, जो स्टूडेंट्स जो है तो उसके लिए ये बहुत फायदेमंद रहेगा शायद। ये क्या है, हम लोग जब पेशेंट को देखते हैं तब उसका पहला जो चीज हम लोगों का नजर में आता है, जैसे कि कोई पेशेंट आपके क्लिनिक में आ रहा है या ओपीडी में आ रहा है या आईपीडी में आप जा रहे हो पेशेंट के देखने के लिए। पेशेंट जब आ रहा है, एक तो पहले जो जिसके ऊपर हम लोगों का नजर पड़ता है वो है उसका फेस। ठीक है, और उसका जो बॉडी लैंग्वेज कैसा है, उसका मूवमेंट कैसा है, गेट कैसा है, ये बाद में आता है। पर मगर पहले जो हम लोग जो देखते हैं वो है फेस। तो ये फेस हम लोग जो देखते हैं, ये क्यों, मतलब फेस का ये इसमें ये क्या है? The thing is that face is actually is the mirror of mind. We say face is the mirror of mind. I don't know whether why this thing is not moving. Oh, okay. So जैसे हम बोलते हैं टंग इज द मिरर ऑफ जीआई सिस्टम, तो फेस इज द मिरर ऑफ माइंड। तो फेस से हम लोग को बहुत सारे चीज पता चलता है, क्योंकि उसका मेंटल स्टेट क्या है, कैसा है, उसका कोई फिजिकल अगर प्रॉब्लम है, तकलीफ है, वो भी हम लोगों को पता चलता है, उसका कोई अंडरलाइन कोई डिजीज जो है वो भी पता चलता है। तो हम लोगों को पहले देखना है कि ये क्या चीज है, फेस क्या है, एंड इसमें कौन सा तरह का फेसिस जो हम लोग बोलते हैं या क्लिनिकल मेडिसिन में कौन किस तरह का फेसिस हम लोगों के पास ज्यादातर आता है, हम लोग देखते हैं हम लोगों का क्लिनिकल प्रैक्टिस में। और वो फेस जो है, इसका जो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है वो इम्पोर्टेंस क्या है। सो या नाउ, अगर सहज भाषा में हम लोग बोलेंगे तो फेस इज द फेसिस इज द फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ अ पेशेंट। फिजियोनॉमी इज द फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ अ पेशेंट। उसका उसका फेस का जो एक्सप्रेशन जो जो आते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सप्रेशन आर देयर। तो और दूसरे भाषा में हम इसको बोल सकते हैं, दिस द एस्पेक्ट एंड एक्सप्रेशन ऑफ पेशेंट फेस। नाउ, जो भी अनुभवी चिकित्सक जो है, वो ये फेस से, ये फेस देख के बहुत सारा चीज पता लगा सकते हैं। ठीक है ना? क्योंकि हम जानते हैं, यहाँ पे कहावत है कि फिजिशियन हैज टू बी वेरी वेरी कॉशियस विथ चिल्ड्रेन, विथ लुनेटिक्स एंड विथ लायर्स। ओके, बिकॉज इन इन तीन जो मरीज, तीन तरह का जो मरीज है, उसका जो वो जो बोले, वो जो आपके पास आके जो वो जो उसका बारे में, उसका जो तबीयत के बारे में जो बोलेंगे वो लोग, या जो एक्सप्रेस करेंगे, वो सही भी नहीं हो सकता है। और उसका फेस से और अगर फेस हम देखते हैं तो उससे हम लोग उसको टैली कर सकते हैं। ठीक है ना? तो कॉमन फेसेस जो है, मैंने आज का जो जो मैं जो बोलना चाहूंगा वो फेस के ऊपर ही रखा है, क्योंकि फेस में बहुत सारे चीजें आते हैं। तो इन जनरल फेस के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। क्योंकि अगर अब डिफरेंट मान मान लीजिए आईज के बारे में या आईब्रोज के बारे में बहुत सारा हम बात कर सकते हैं, या और भी दूसरा चीज के लिए, मगर कॉमन क्लिनिकल जो कंडीशन जो है उसके बारे में हम लोग आज बातचीत करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द मोस्ट कॉमन फेस जो हम लोग जो देखते हैं, पेशेंट जब आते हैं और जब आते हैं हम लोग के पास, तो वो जो है वो एंग्शियस फेस। सो दीज आर द 18 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेसेस जो हम लोग देखते हैं। देन हिपोक्रेटिक फेसेस, जब हम लोग मेट्रोमेडी का पढ़ते हैं तो हम उसके हिपोक्रेटिक फेसेस देखते हैं। राइशस सैडोनिकस, ये ज्यादातर अभी नहीं देख सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रिचनिंग पॉइजनिंग या ऐसा कुछ अभी इतना ज्यादा नहीं होता है। मगर नेक्स्ट कॉमन फेसेस जो हम लोग के पास आता है वो है फेस ऑफ बेल्स पॉल्सी। बेल्स पॉल्सी वाला फेस हम लोग देखते हैं। टेप्स डॉर्सलिस वाला फेसेस अभी नहीं आता है, क्योंकि ये जो सिफिलिस जो है वो दिस इज नॉट वेरी कॉमन नाउअडेज, सो ये नहीं आता है। बट हॉर्नर सिंड्रोम वाला फेसेस हम लोगों को देखने को मिलता है। लेंटिकुलर डिजेनरेशन, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम या न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट पे अगर कोई काम कर रहा है तो उसको ये देखने को मौका मिलेगा। बट इन जनरल प्रैक्टिस वी हार्डली गेट दिस काइंड ऑफ थिंग। बट सुलेन फेसिस ब मोurnful फेसिस दैट वी गेट। इल्फाइन फेसिस देन अगेन बच्चों के लिए आते हैं ये।
ज्यादा नहीं मिलता है, मगर ये जानना जरूरी है क्योंकि एल्फाइन फेस से बहुत डायग्नोसिस वहां से आ जाता है। माइट्रल फेसिस जो बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शंस वाला अगर है तो उसमें मिलेगा, और नहीं तो हम लोगों का जैसे है तो उसमें माइट्रल फेसिस जो चेंजेस जो है वो देखना थोड़ा डिफिकल्ट है, मगर ये होता है। एक्रोमेगली फेसेस हम लोग देखते हैं, क्रेटिन फेसिस हम लोगों को देखने को मौका मिलता है। लियोनाइन फेसिस पहले ज्यादा आता था, अभी आते हैं बट इतना नहीं है क्योंकि यहाँ पर लेप्रोसी भी कम हो गया है पहले से, इसलिए। देन मंगोलियन फिशेस और मंगोल फेसिस ये हम लोग देख सकते हैं। मून फेसिस हम लोगों को मिलता है बहुत सारा। हेपेटिक फेसिस, यस वी गेट दिस काइंड ऑफ फेसिस वेरी ऑफन, हम लोगों को मिलता है। और मास्क फेसिस ये भी हम लोगों को मिलता है। तो सबसे जो पहले जो सबसे ज्यादा आता है दैट इज द एंग्शियस फेसिस। मगर ये बोलने से, क्योंकि मेरा जो आज का बोलने का विषय जो है वो स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा है, तो इसीलिए, क्योंकि बुजुर्ग जो जो अनुभवी चिकित्सक जो है उनको तो पता है, मगर स्टूडेंट्स फॉर यू ये क्या है कि हम लोगों को यह याद रहना चाहिए। फॉर अ होम्योपैथ आई सपोज द ऑफन फैटल फर्स्ट स्टेप इज टू लेवल डिजीज एंड देन टू लेवल ड्रग्स टू मैच। ये मार्गरेट टाइलर का एक बात है, ये इसको हम लोगों को याद रखना चाहिए। मगर ये भी नहीं कि डिजीज हम डायग्नोसिस ना करें। डिजीज डायग्नोसिस करना है, वो क्यों करना है वो कभी अगर बात होगा तो आप लोगों से तो फिर बताया जाएंगे। नाउ एंग्शियस फेसेस हम जो बोलते हैं दैट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फेसेस, एंड इट्स इज मोस्टली ये हम लोग को जो जहाँ मिलता है कोई एक्यूट डिजीज, कोई भी एक्यूट क्लिनिकल कंडीशन लेके आपके पास आएंगे तो ये एंग्शियस फेसेस आप लोग को बहुत ज्यादा मिलेगा। मान लीजिए अभी जो मौसम है, जब सर्दी का मौसम आ रहा है क्योंकि ये जाड़ा का मौसम आ रहा है, और अभी देखिए आप देखिएगा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस बहुत सारे पेशेंट्स आएंगे आपके पास, बहुत सारे पेशेंट्स जब आएंगे, और अगर इस उन लोगों को का शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ अगर हो रहा है क्या, या कोई दम्मा का शिकायत अगर किसी को है, तो वो ये पेशेंट आपको अभी बहुत सारे मिलेंगे ओपीडी में, आईपीडी में, हॉस्पिटल में या क्लिनिक में। आप देखिएगा ये बहुत सारा पेशेंट जिसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है तो वो आएंगे तो दे विल कम विद द फेसेस ऑफ दिस एंग्शियस फेसेस। ओके, and it's a very characteristic for in case of, obviously in case of severe pneumonia, in case of shortness of breath, as I already told you। बट अभी ये जाड़ा का मौसम में और एक चीज होता है कि बुजुर्ग आदमी को होता है, जिन लोगों का हाइपरटेंशन है या उन लोगों का डिस्लिपिडेमिया अगर है, वो लोग अगर कोई ये एंटी हाइपरटेंसिव या स्टैटिन ग्रुप का अगर कोई ड्रग भी ले रहा है कि नहीं ले रहा है, वो भी हो सकता है। अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है या डायबिटिक पेशेंट है, इन लोगों का क्या होता है अभी ये इस मौसम में, आप देखिएगा कि बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं जो अभी, क्योंकि तरह तरह के सब्जी वगैरह मिलता है और वो लोग ये कंज्यूम करते हैं, और रात को लगता है कि ये लोग बोलते हैं कि गैस जैसा बन गया है। एक्चुअली गैस नहीं बनता है, समटाइम्स इट इट मे कॉज, इट मे बी अ प्रॉब्लम विथ एंजाइना, एंजाइनल पेन, स्टेबल एंजाइना। मेरा हिंदी थोड़ा वीक है, प्लीज पार्डन मी। तो इसमें उसमें वो चेस्ट का जो पेन या वो लेके भी आ सकते हैं, फिर एंग्शियस फेसेस होगा, या सीवियर न्यूमोनिया अगर है, रेस्पिरेटरी एयर हंगर हो रहा है इन केस ऑफ स्टेटस एस्थमेटिकस, उसमें आ सकते हैं। सो पेन एब्डोमेन इज अ वेरी कॉमन थिंग, या अगर कोई भी आ रहा है तो ऑब्वियसली दे विल कम विद दिस पेन, दिस काइंड ऑफ थिंग। एंड और ये छोड़ के और एक चीज होता है, मान लीजिए जिन लोगों का बाइपोलर मूड डिसऑर्डर है या एंजाइटी डिसऑर्डर में जो लोग सब, पैनिक अटैक, पैनिक डिसऑर्डर में जो लोग सफर करते हैं, वो भी आपके पास जब आते हैं तो दे विल कम विद फेसेस ऑफ दिस काइंड ऑफ एंग्शियस फेसेस। एंग्शियस फेसेस में वो देख के हम लोग को पता चलता है वो एंग्शियस फेसेस में जो ये जो है ये एक्यूट डिजीज और एक्यूट क्लिनिकल कंडीशन वो हम लोगों को पता चल जाता है। और मैंने थोड़ा थोड़ा कुछ रेपर्टरी का कुछ डाले हैं इसमें, मगर ये बात प्लीज डोंट गो बाय दैट दैट थिंग, गो बाय दैट, क्योंकि पूरा केस टेकिंग करने के बाद अगर एक्यूट केस है, एक्यूट केस का जैसे हम लोग केस टेकिंग करना चाहिए, जो डॉक्टर हैनमैन का जो गाइडलाइन है, या क्रॉनिक केस है, क्रॉनिक केस का जो गाइडलाइन हम जैसे केस टेकिंग करते हैं, तो और फिर रेपर्टरी करके जैसे जो भी ड्रग आएगा, या इफ यू आर वेरी गुड इन मेट्रोमेडिका एंड क्लिनिकली यू कैन फाइंड आउट द ड्रग। बट ये मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डाले हैं जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि रेपर्टरी में ये एकदम ऐसे बोल के यहाँ पे ड्रग्स हैं
जस्ट टू शो यू दैट थिंग, क्योंकि ये अगर कोई भी, ये मतलब ये नहीं कि ये जो दवाई है इसी के अंदर में ये सारे चीज आएंगे, सो डोंट गो बाय दैट थिंग प्लीज। And so next we are coming to this thing, Hippocratic faces. Now Hippocratic faces, that is ये जो है ये मिलता है अगर कोई पेशेंट अगर डिहाइड्रेशन में चला गया है या हाइपोवोलेमिक शॉक जिनको हुआ है उसको ये ज्यादातर मिलता है। और नहीं तो वॉस्टिंग टाइप ऑफ डिजीज लाइक एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, कॉलेरा अभी ज्यादा नहीं बनता है, गर्मी का मौसम में कभी कभी होता है। इनके पीपल दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम टर्मिनल डिजीज जो जिसमें होता है उसमें, या फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्यूट पेरिटोनाइटिस, ये भी ज्यादा नहीं आता है, मगर ये डिहाइड्रेशन, हाइपोवोलेमिया, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, कॉलेरा, ये वाला चीज ज्यादा आता है। और डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैलिग्नेंसीज है, टर्मिनल डिजीज, उसमें ये ऐसा हिपोक्रेटिक फेसिस आता है। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो देखिएगा, इस तस्वीर में यहाँ पे दिख रहा है कि ये हॉलो टेम्पल जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेलर प्रोमिनेंस, विद दैट देयर इज सनकन आईज, आईज जो है वो थोड़ा अंदर की तरफ जा चुका है, देखिए। आईलिड्स जो है वो स्लाइटली पार्टेड है एंड आईज बिकम्स ग्लेज्ड। उसके संग संग ये नीचे वाला जबड़े का नीचे वाला जो पोर्शन है वो देखिए वो ड्रॉप्ड हो गया है, और टीथ समटाइम्स इट्स कवर्ड विद शोर्ट्स। तो ये जो जो क्लिनिकल अपियरेंस है ये हिपोक्रेटिक फिजिस का अपियरेंस है। ये हिपोक्रेटिक फिजिस जब अगर हम लोगों को मिलता है तो हम लोग को सोचना चाहिए कौन कौन सा। सो आइदर ये टर्मिनल डिजीज में है, ये नहीं तो ये वाला जो डिजीज हमने बोले हैं ये इसमें हो सकता है। नेक्स्ट इज, देखिए फिर प्लीज डोंट गो बाय दिस थिंग ओनली, हिपोक्रेटिक फेसिस ये दिया हुआ है केन, ये केन का रेपर्टरी का ब्यूटी है। हम लोग जनरल टू पर्टिकुलर जाते हैं, जनरल टू पर्टिकुलर, सो वी, बट ऑल दीज थिंग्स, दिस काइंड ऑफ फेसेस हम जो क्लिनिकली बोल रहे हैं वो ये चीज ये केन के रेपर्टरी में दिया हुआ है। तो ये हिपोक्रेटिक फेसेस या सनकेन फेसेस जो है, ये देखिए इसका ये रूब्रिक भी है वहाँ पे, और इसका इसमें ड्रग्स वगैरह भी दिया हुआ है। तो और ज्यादातर ये देखिएगा जो ड्रग्स यहाँ पे दिया हुआ है, जो जो डिजीज हम लोग बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं उसी का ये जो ड्रग का जो पैथोजेनिसिटी अगर आप देखिएगा तो वही वही तरह का डिजीज ये करता है। नेक्स्ट आई एम कमिंग टू राइशस सैडोनिकस। ये ज्यादा अभी नहीं मिलता है, मगर ये हम लोग को जानने का जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर मान लीजिए किसी को ऐसा कोई डीप पेनिट्रेटिंग वुंड वगैरह अगर हो गया कोई कील से, या कोई तरह का कट इंजरी अगर हो गया, तो उसमें ये हो सकता है क्योंकि आप बोल सकते हैं ठीक है कोई बात नहीं, आप टेटनस टॉक्साइड मत लीजिए, या ये भी हम हमारा हमारा दवाई देंगे। हाँ डेफिनेटली वी हैव गुड मेडिसिन फॉर दैट थिंग। बट अगर कोई आपके पास अगर ऐसा अगर हिस्ट्री अगर मिल रहा है, और अब आप पेशेंट को देखने जा रहे हैं कि आपके पेशेंट को देख रहे हैं कि पेशेंट सही ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जो है फिक्स्ड ग्रीन जिसको हम बोल रहे हैं, थोड़ा हंसमुख जैसे ये ट्विचिंग हो रहा है, एंगल्स ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ आर ट्विचिंग अपवर्ड at interval and drawn up and is drawing upward like a smile, जैसे लग रहा है कि हंस रहा है, और फीचर्स assumes like a fixed sarcastic smile हम जिसको बोलते हैं। तो ये अगर यहाँ वहां पे है तो इसको हम राइशस सैडोनिकस, और ऑब्वियसली ये स्ट्रिचनिन पॉइजनिंग में ज्यादा मिलता है, या टिटनस टॉक्साइड अगर ये इसमें अगर कोई इन्फेक्शन अगर है तो उसमें। और देखिएगा ये जो इसका थोड़ा जैसे हम बोल रहे थे दिस ट्विचिंग ऑफ माउथ अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ, देखिए ये यहाँ पे जो ड्रग्स वगैरह कुछ दिया हुआ है, और कॉन्वल्सन स्पैज्म या कॉन्वल्सन डिफरेंट पार्ट्स, ये मैंने जस्ट क्योंकि ये स्टूडेंट्स लोग आते हैं इसीलिए मैंने ये थोड़ा ये रूब्रिक्स वगैरह रखे हैं। नाउ बेल्स पॉलिसी, ये बेल्स पॉलिसी जो है ये इस मौसम में आप ज्यादातर आप लोगों को मिलेगा। कोई भी अगर बस में या ट्रेन में या कार में ट्रेवल करके आ रहा है, या बहुत ठंडा का मौसम में अगर बहुत विंड एक्सपोजर अगर ज्यादा हो रहा है, तो उसके बाद देखिएगा कि ये हो रहा है कि उसका जो वो पेशेंट आके बोलेगा कि वो जब आंख ठीक से मूंद नहीं रहा है दोनों आंख, और मुंह में एक साइड कुछ वीक ऐसा लग रहा है। और अगर पेशेंट को आप बोलेंगे तो कि यू जस्ट रिंकल योर फोरहेड, आपका जो आई डोंट नो फोरहेड में अगर रिंकल करने बोलेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। और आई आईलिड एक जिस जिस वन हाफ ऑफ द फेस जो अफेक्टेड हुआ है उस साइड का जो आईलिड है वो आईलिड थोड़ा ड्रूपिंग हो जाएगा। कॉर्नर्स ऑफ द माउथ जिस साइड का फेशियल नर्व अफेक्टेड हुआ है उसका कॉर्नर्स ऑफ द माउथ
वो हेल्दी हेल्दी पोर्शन जो है उस तरफ ड्रॉन हो जाएगा, वो उस तरफ खींचा चला जाएगा। और आंख से जो अफेक्टेड आई है वहां से वो बंद नहीं कर सकते हैं, और वहां से कांस्टेंट जो पानी वो आएगा, जिसको हम बोलते हैं क्रोकोडाइल टीयर, on the patient is unable to close the eyes on the affected side, and also the affected eyeball जो है वो अगर आंख बंद करने की कोशिश करेगा तो रोटेट करके ऊपर की तरफ चला जाए, जिसको हम बोलते हैं बेल्स फिनोमेना। तो ये एक पेशेंट है, इसको चेष्टा करो, চোখ বন্ধ করার চেষ্টা করো। देखिए आई ऊपर की तरफ रोल कर दिया, চোখ खोलो, বন্ধ করার চেষ্টা করো। ठीक है ना, वो इसका लेफ्ट साइड अफेक्टेड हुआ है। ফোলানোর চেষ্টা করো। देखिए ये मुंह जो है, ये जो हेल्दी साइड है वहां पे टांग, ठीक है, टांग में कोई नहीं है क्योंकि ये फेशियल नर्व का इन्वॉल्वमेंट है। तो इसमें ये जो हो रहा है, इसका जब जब हम बोल रहे थे कि अगर आप आंख बंद करने की, आंख मूंदने की कोशिश कीजिए, और ये आंख जो जिस साइड का ये इसका ये है, उसका उस साइड का देखिए, इस साइड का वो आंख वो मूंद नहीं पा रहा है, उसका आंख क्लोज नहीं हो रहा है, उसका समटाइम उसका चेष्टा करो, चेंज कर रहा है कि तो जिस तरह हेल्दी है उसका उस तरह ड्रॉ हो जा रहा है, जिस तरह वीकनेस है वो नहीं है। मुंह फुलाने की चेष्टा करो। ओके, सो देखिए ये पैरालिसिस जब जैसे हम बोल रहे थे, वन हाफ ऑफ द फेस उसमें है फेशियल पैरालिसिस। इसमें एक साइड में यहाँ पे है, वन साइडेडनेस ऑब्वियसली है, और बहुत सारा कारण के लिए होता है। इसमें हम लोगों को एक चीज देखना है कि रैमसे हंट सिंड्रोम जो है, रैमसे हंट सिंड्रोम से हम इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। और ये टेप्स डॉर्सलिस वाला फेसेस ये यहाँ पे नहीं आता है, ये आता है टेप्स डॉर्सलिस में जो होता है, कैरेक्टरिस्टिक बाय अनइक्वल प्यूपिल, ड्रॉपिंग ऑफ द आईलिड्स एंड रिंकलिंग ऑफ द फोरहेड। क्योंकि ये इसका जो ये अगर रिंकलिंग नहीं करेगा तो इसका ये प्रॉब्लम होगा। तो दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, बट द थिंग इज दैट ये जो अभी नहीं मिलता है तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। और फिर भी ये मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, ये हॉर्नर सिंड्रोम। ये हॉर्नर सिंड्रोम वाला फेसेस हम लोगों को यहाँ पे मिलता है। हॉर्नर सिंड्रोम में देखिए ये क्या होता है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक चीज जो है ये है जिस जिस साइड में अफेक्टेड है, तो वो अफेक्टेड साइड का जो अपर आईलिड है वो ड्रूपिंग होगा, यानी कि उसमें उसमें ताकत कम होने के लिए वो थोड़ा नीचे की तरफ आ जाएगा, और पेशेंट विल नॉट बी एबल टू ओपन हिज दैट अफेक्टेड आई प्रॉपरली। और पैल्पेब्रल फिशर जो है वो नैरोड होगा ऑन द अफेक्टेड आई। और जिस आई अफेक्टेड हुआ है उसी आई का जो प्यूपल है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड रहेगा दूसरे, इन कंपैरिजन टू द अदर आई, दूसरे वाला आई से। और एक उसके संग संग एपरेंट जो एनहाइड्रोसिस होता है, जिस साइड ऑफ फेस अफेक्टेड हुआ है उसी साइड में इसका पसीना ज्यादा नहीं होगा, उस साइड थोड़ा ड्राई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हॉर्नर सिंड्रोम में यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइडेड, ये बाएं की तरफ जो तस्वीर है उसमें देखिए लेफ्ट पीपल यहाँ पे अफेक्टेड हुआ है। और इसमें देखिए लेफ्ट पीपल का मियोसिस, दैट मीन्स ये कॉन्स्ट्रिक्टेड हुआ है, और लेफ्ट अपर आई ये इसका ड्रोपिंग हुआ है, जिसको हम बोलते हैं टोसिस। एंड ये ऊपर में राइट वाला जो पिक्चर है उसमें देखिए राइट आई अफेक्टेड हुआ है, उसका राइट आई में यह ड्रोपिंग है और मियोसिस वहाँ पे है। नाउ इफ वी गो फॉर दिस काइंड ऑफ दिस थिंग, हॉर्नर सिंड्रोम, ये देखिए किन रेपर्टरी में अगर हम जाएंगे तो आई में प्यूपल्स कॉन्स्ट्रिक्टेड और वन साइडेड, यहाँ पे जो ड्रग्स यहाँ पे दिया हुआ है। मगर ये देखिए देन अगेन मैं ये एक बार फिर भी बोलना चाहूंगा कि एक्यूट के लिए ठीक है, ठीक, मगर वॉट एवर यू टेक द टोटलिटी ऑफ द पेशेंट एंड देन यू कम। एंड देन ऑब्वियसली यहाँ पे देखिए फेस पर्सपिरेशन, वन साइड, एक साइड का पर्सपिरेशन हो रहा है, दूसरा साइड के नहीं हो रहा है। सो हॉर्नर सिंड्रोम वाला जो सिम्टोमेटोलॉजी जो है वो भी सिम्टोमेटोलॉजी, आई समटाइम फील वेरी एस्टोनिस्ड। मुझे मुझे कभी कभी ऐसा मैं अवाक मैं हैरान हो जाता हूँ कि डॉक्टर केन ने कितना सारा रूब्रिक्स उसमें है जो हम लोग रोज देखते हैं पेशेंट, और वी फाइंड दिस काइंड ऑफ रूब्रिक देयर इन हिज रेपर्टरी। सी, पैरालिसिस ऑफ आइरिस, और पैरालिसिस ऑफ वन ऑफ लीड्स ऑफ वन। तो ये जो जो सिम्टम हम बोल रहे थे उस सिम्टम के ये यहाँ पे ड्रग्स दिया हुआ है। सो मेरा बेसिक मतलब ये है ये दिखाने के लिए, बट ये नहीं कि ये ही ड्रग वहां पे लगेगा, ऐसा बात नहीं है, प्लीज, हाँ, डोंट गेट मी रॉन्ग। नाउ देन फेस ऑफ लेंटिकुलर डिजनरेशन, इसमें ये स्पेस्टिक टाइप का स्माइल आता है विद ओपन माउथ, and that is a very characteristic features of lenticular degeneration. Okay, so I'm not going into details this thing, but अगर ऐसे आप देख रहे हैं कोई पेशेंट अगर है, now you can easily understand this
is a patient of lenticular degeneration. Okay. Now, then distortion of face, ये एक symptomatology है, ये अगर कोई मसल स्पैज्म है उसमें भी आ सकता है, मगर ये यहाँ पे दिया हुआ है। ये चीज सुलेन और मोurnफुल फेसेस ये आपको मिलेगा, क्योंकि बल्बर पाल्सी वाला जो पेशेंट्स अगर आप देख रहे हो ओपीडी में या आईपीडी में, तो उसमें आपको ये मिलेगा। इसमें जो होता है, ये देखिए, पैरालिसिस ऑफ द ऑर्बिकुलरिस ऑरिस, मतलब कि ये जो मुंह का जो ये मसल जो है ऑर्बिकुलरिस ऑरिस, इसका पैरालिसिस हो रहा है, और उसी के चलते हुए क्या हुआ है, वीकनेस ऑफ द जाइगोमेटिसी, एंड बिकॉज ऑफ द दैट थिंग यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्रॉपिंग ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ। ठीक है। और ये ऑर्बिकुलरिस ऑरिस का जो वीकनेस हो रहा है, इसके लिए पैरालिसिस हो रहा है, इसके लिए क्या हो रहा है, लोअर जो लिप है वो बाहर की तरफ पाउट आउट करके आ रहा है। ठीक है, जैसे मुंह फुला के बैठना जिसको बोलते हैं हिंदी में, वैसे ही। एंड इन मोर एडवांस केसेस इसमें क्या होता है, सैलिवर जो सैलाइवा, ये जो कॉर्नर्स ऑफ द माउथ नीचे की तरफ आ गया है और ड्रूपिंग हो गया है, वहां से सैलाइवा ड्रिबल करता है। ठीक है ना। सो दैट इज कॉल्ड सुलेन फेसेस, एंड दिस सुलेन फेसेस इज फाउंड इन केस ऑफ बल्बर पैरालिसिस। प्रोग्रेसिव बल्बर पैरालिसिस जिस जो जो भी पेशेंट आप अगर आप देखेंगे, तो उसमें ये आपको मिलेगा। एंड ठीक है। Now, see the paralysis of the corners of the mouth and dropping of saliva. The saliva runs out. ये वहाँ पे दिया हुआ है. You can use that, is that particular this thing. Now, coming back to here, the next is ill-fine faces. नाउ इल्फाइन फेसिस ये मिलता है, ये वाला जो ये है, मगर इतना ज़्यादा तो डेफिनेटली नहीं मिलता है, मगर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, अगर अब हम लोग एक बार देख लेंगे, तो देखिएगा उसको हम फिर याद रखेंगे, हम भूलेंगे नहीं। क्योंकि ये इसका एक चीज़ है जिसको हम बोलते हैं, ये अपटर्न्ड नोज, ये नोज, ये नीचे वाला जो तस्वीर है, उसका वो जो लड़की है उसका नोज देखिए, उसका नोज का टिप ऑफ द नोज थोड़ा अपटर्न है, ऊपर की तरफ है। सो दिस अपटर्न नोज अगर आप देख रहे हैं, तो आपको ये याद दिलाएगा कि इट मे बी अ केस ऑफ दिस एल्फाइन फेसेस। ओके। एंड नेक्स्ट उसके संग संग ये क्या है, यहाँ पे देखिए ब्रॉड फोरहेड है, चिन जो है, चिन थोड़ा पॉइंटेड होगा, इसमें चिन पॉइंटेड रहता है। ठीक है। और ये क्यूपिड बो लाइक लिप, ये ऊपर वाला जो तस्वीर है उसका अपर लिप जो ये देखिए, उसका अपर लिप जो है वो क्यूपिड बो लाइक, जो क्यूपिड, यू नो, फ्रॉम द माइथोलॉजी ऑफ दिस यूरोपियन माइथोलॉजी से ये आता है, क्यूपिड बो लाइक अपर लिप। एंड हाइपर टेलरिज्म, ये देखिए दोनों आंख का जो इनर कैंथाई है, इन दोनों आंख का इनर कैंथाई का जो डिस्टेंस है, ये नॉर्मल से ज्यादा है। ठीक है, दोनों आंख जो है थोड़ा दूर में बैठा हुआ है, इन बिटवीन द आईज जो है ये डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, तो इसको हम बोलते हैं हाइपरटेलरिज्म। और देखिए इसका जो, अगर आप अपने खुद का देखेंगे, तो आपका अगर आईब्रो अगर टच करेंगे और आईब्रो से अगर पीछे तरह की तरफ जाएंगे, तो यू कैन सी दैट यू आर टचिंग द टिप ऑफ योर दिस ईयर। ओके। तो हम लोग जब ड्राइंग करते हैं, छोटे बचपन में ड्राइंग करते हैं, तब फेशियल में ऐसे सिमेट्री के लिए हम लोग ऐसे करते हैं कि आंख से जो एक लाइन टानते थे, वो जो आता था वो कान की तरफ आता था। ठीक है, वो तो यू कैन सी, यू कैन इजीली फील योर ईयर, द लेवल ऑफ द लेवल, ये ईयर जो है आपका, कान जो है वो कौन सा लेवल पे है। और इन लोगों को देखिए, इसका जो ईयर जो है, ये इसका जो कान जो है, ये थोड़ा नीचे की तरफ है, तो इसको बोलते हैं लो सेट्स ऑफ ईयर। सो दिस इज, ये जो है ये एल्फिन फेसिस का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये यूजुअली हम लोगों को ये सुप्रावेंट्रिकुलर, सॉरी, सुप्रावाल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस, इसमें भी यूजुअली ये इसमें मिलता है। ठीक है, अगर एल्फिन फेसिस इज यूजुअली फाउंड इन सुप्रावाल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस, जो एंड ये पूरा जो चीज है, अगर सुप्रावाल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस विद एल्फिन फेसिस, ये पूरा जो चीज है, इसका हम बोलते हैं विलियम्स सिंड्रोम। सो पीडियाट्रिक्स में अगर कोई अगर ओपीडी में या आईपीडी में ड्यूटी कर रहे हो, या आपका चेंबर में अगर कोई ऐसा ये आ रहा है, so obviously you will have the other symptomatology of supravalvular aortic stenosis. Obviously if there is aortic stenosis, you can understand, वो आपको पता चलता है कि उसमें क्या होता है। और ये supravalvular aortic stenosis होने के लिए उसका जो symptomatology ये आएगा, उसके संग संग ये जो फीचर्स है, वो फेशियल फेशियल जो फीचर्स जो है उसमें ये आ जाएगा।
Now, this mitral faces, these two faces are then again is ये जो है ये हार्ट के संग दोनों ही जुड़े हुए हैं. So mitral faces, we all know this mitral faces, that means we get this thing. ये हम लोगों को mitral valve का अगर कोई पैथोलॉजी है तो उसमें मिलता है. That means mitral valve stenosis जो होता है. So mitral valve stenosis अगर कोई आदमी कोई पेशेंट को अगर हो रहा है तो उसमें हम लोगों को ऐसा मिलता है. सो इसमें क्या होता है, मेलर बोन जो है, मेलर यहाँ पे मेलर फ्लश ज्यादा होता है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ ये हम लोगों का जो कैपिलरी जो है, कैपिलरी का वेजोडाइलेशन होता है ऑन चीक पे, बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड. एंड ऑब्वियसली एंड दिस इज रियली फाउंड इन इंडिया, बिकॉज हम लोगों का यहाँ पे हम लोग का कॉम्प्लेक्शन ऐसा नहीं है कि हम लोगों को वो मेलर फ्लश जो है, मेलर फ्लश हम लोगों को मिल जाएगा. और ये जो माइट्रल स्टेनोसिस का जो फेसिस है, ये फेसिस हम लोगों को यहाँ पे मिलता है, क्योंकि मान लीजिए माइट्रल स्टेनोसिस ये इन लोगों को ज़्यादा होता है जो बचपन में बार बार जिन जिन लोगों को ये होता है, जिसको हम बोलते हैं सोर थ्रोट. रिकरेंट सोर थ्रोट अगर किसी को हो रहा है विद ऑब्वियसली स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट, तो उसमें सेकेंड डिकेड ऑफ लाइफ या अर्ली थर्ड डिकेड ऑफ लाइफ में जाके फिर ये माइट्रल स्टेनोसिस का जो सिम्टोमेटोलॉजी वो उभर के आता है, और उसी उम्र में जाके ये फिर ये जो माइट्रल स्टेनोसिस का जो फेसिस है वो देखने को मिलता है, मगर यहाँ पे ज्यादा नहीं मिलता है. नेक्स्ट हम लोग बात कर सकते हैं ये एक्रोमेगली फेसिस के बारे में. एक्रोमेगली फेसिस दैट मीन्स ये इज अ मशहूर जो ऊपर का जो तस्वीर है मिस्टर खली, WWF जो यंगस्टर जो देखते हैं वो पहचानते हैं इसको. सो दैट इज फाउंड इन, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, इसको हम बोलते हैं जो बुल डॉग वाला जॉ. ये नीचे का जरा जबड़ा का नीचे का पोर्शन जो है वो थोड़ा बाहर आ जाता है, सो प्रोग्नेथिज्म और बुल डॉग वाला जॉ. एंड लोअर इंसाइजर्स जो होता है, एंड ये पोट्रूड आउट करता है इन फ्रंट ऑफ द अपर इंसाइजर्स, ठीक है. और इसके संग संग क्या होता है, ये ऑब्वियसली ये एक्रोमेगली जो हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन का ये बहुत ज्यादा ये एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एन एडल्ट, एंड दैट्स व्हाई इसमें क्या होता है, इनलार्जमेंट ऑफ द एवरीथिंग इज वेरी इनलार्ज, सो इनलार्जमेंट ऑफ द फेस उसमें हो जाता है, मुंह बड़ा हो जाता है. प्रोमिनेंट सुप्रा ऑर्बिटल रिज, that is due to enlarged maxillary frontal and ethmoidal ear sinuses, all the ear sinuses जो है वो बड़ा हो जाता है. थिक लिप्स आता है इसमें. मैक्रोग्लॉसिया, दैट मीन्स इसका टांग जो है बड़ा हो जाता है. इसका यार जो है, दैट्स लार्ज यार, लार्ज नोज, एंड दैट इज ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ कार्टिलेज हाइपरट्रॉफी. उसके संग संग उसका थिक स्किन आता है, और इसके संग संग जो आता है दैट इज वी से द बुशी आईब्रो एंड ग्रीजी स्किन, क्योंकि इसका जो सिबम सिक्रेशन जो है वो भी ज्यादा होता है. सो ये ग्रीजी स्किन, सो ये जो फेसेस जो है ये स्पेसिफिकली हम लोगों को ये देख के ही हम लोगों को पता चलेगा दिस पर्सन और दिस गाय इज सफरिंग फ्रॉम एक्रोमेगली. ओके, एंड दैट इज अ जाइगेंटिज्म, एंड ऑब्वियसली इट्स अ जाइगेंटिक फिगर. यू कैन, हम लोग जो जो जब खली को देखते हैं तो वी कैन अंडरस्टैंड इज अ जाइगेंटिक फिगर. ओके, नाउ कमिंग टू दिस, नाउ क्रेटिन फेसेस, एंड ऑब्वियसली क्रेटिन फेसेस जो है ये आप लोगों को पता चलेगा, क्योंकि ये ऑब्वियसली देन देन ये इसका जो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो अपियरेंस जो है वो डाल एंड इडियोटिक जैसा अपियरेंस जैसे हो रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है. और उसके संग संग जो है यहाँ पे देखिएगा, ये नेजल ब्रिज जो है, ये नेजल ब्रिज थोड़ा डिप्रेस्ड है, ठीक है. एंड इसके संग संग ये जो हाइपर टेररिज्म जो मैंने पहले बोल के आए हैं, हाइपर टेररिज्म, ये जो हाइपर टेररिज्म इस पेशेंट में इसमें देखिए. और इसके संग संग देखिए इसका जो आईब्रो है, ये जब देखता है तो ये थोड़ा ये रिंकलिंग ऑफ द फोरहेड एंड आईब्रो ये इसका होता है. तो ये एक्चुअली ये देखते ही हम लोग को पता चल जाता है कि ये this particular person this patient is basically suffering from जो hypothyroidism, that means ये pediatric एज में pediatric इसमें ये आ जाता है. सो वहाँ पे अगर TSH लेवल इज वेरी पुअर, एंड देन ऑब्वियसली दिस काइंड ऑफ पेशेंट यूजुअली कम. इसमें क्या होता है, इसका लिप जो होता है वो थोड़ा इवर्टेड होता है, मैक्रोग्लॉक्सिया, एंड उसके संग संग ये ड्राई स्किन एंड ऑब्वियसली ड्राई हेयर. तो ये क्रेटिन फेसिस, ये फिर नाउ इसका जो लिप थोड़ा नीचे का तरफ देखिए, ये भी थोड़ा स्प्राउट आउट है. और ये क्रेटिन फेसिस देख के हम लोग को पता चल जाएगा, क्योंकि ये नाउ दिस फेसेस आर बेसिकली
हम लोग जिसको बोलते हैं वो खुद ही अपने अपना जो परिचय है वो दे देते हैं। नाउ दिस वन इज लियोनाइन फेसिस। ये लियोनाइन फेसिस फिर अभी इतना ज़्यादा तो नहीं मिलता है, मगर ये कलकत्ता में यहाँ पे लेप्रोसिस सोसाइटी है, वो पे हम लोग जब स्टूडेंट थे हमने देखे हैं इन लोगों को। नाउ दिस लियोनाइन फेसिस, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो है डीपर फोरहेड लाइंस विथ लूजन्स और लॉस्ट अपर सेंट्रल इंसाइजर टीथ। ये नीचे वाला जो बंदा है, इसका अगर तस्वीर हम देखेंगे तो इसमें पता चला जाएगा। देखिए इसका जो अपर जो सेंट्रल इंसाइजर टीथ है वो तो लॉस्ट हो गई है। नाउ थिक आईब्रो विथ, ये ऊपर वाला अगर तस्वीर आप देखेंगे या नीचे वाला तस्वीर, दोनों को ही देखेंगे, इसका जो आईब्रो है वो देखिए मीडियल एस्पेक्ट्स में उस वो थिक है, और बाहर वाला लेटरल एस्पेक्ट में वो लॉस्ट है। और उसका नोज जो है, ये नाक जो है वो सैडल सेपेड नोज है या डिप्रेस नेजल ब्रिज है विद ब्रॉड नोज। और समटाइम्स ये भी मिलता है कि इसका जो नेजल सेप्टम जो है वो परफोरेटेड होता है। नाउ थिक स्किन ऑफ फेस एंड स्पेशली इनफिल्ट्रेटेड देन ईयर लोब्स उसके इन लोगों को मिलता है। एंड ऑब्वियसली दिस इज फाउंड इन केस ऑफ लेप्रोमेटस लेप्रोसिस। क्योंकि लियोनाइन फेसेस अगर हम देखेंगे तो लियोनाइन फेसेस देख के ही हम लोग को पता चलेगा कि दिस पर्टिकुलर पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम लेप्रोमेटस लेप्रोसी। Now, these are very characteristic features that deeper forehead lines and obviously loss of central incisor and the eyebrow. Medially ये है, ये laterally ये loss हो चुका है, ठीक है ना। और obviously now this kind of saddle, but saddle shaped nose, ये नीचे वाला जो तस्वीर जो है, जो पिक्चर है, इसमें saddle shaped nose इतना prominent नहीं है, but loss of central incisor that we can see. Now, चिपमंक फेसेस हम लोगों को देख पेडियाट्रिक वार्ड में बहुत सारा ऐसा पेशेंट मिलता है जिसको चिपमंक फेसेस मिलता है, क्योंकि थैलासेमिया अभी तक ये तो ज़्यादा है, हम लोगों का यहाँ पे ज़्यादा होता है थैलासेमिया। क्योंकि शादी के पहले हम लोगों का यहाँ पे ब्लड टेस्ट करना या थैलासेमिया वेदर हम लोग थैलासेमिया का वाहक है कि नहीं, जो भी शादी करने जा रहा है वो तो देखते नहीं है, और इसी के चलते हुए ये ज़्यादा होता है। और इसका जो जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है, देखिए इसका जो फ्रंटल बॉसिंग होता है ड्यू टू बोन मैरो हाइपरप्लासिया। और बोन मैरो हाइपरप्लासिया के लिए ये जो मैक्सिला जो है, ये देखिए ये थोड़ा उभर के आता है, इसीलिए लगता है कि नेजल ब्रीथ जो है, क्योंकि ये स्फेनॉइडल जो हाइपरप्लासिया अगर हो रहा है, सो लेसर विंग्स ऑफ द स्फेनॉइड, तो इससे लगता है कि नेजल ब्रीथ जो है वो डिप्रेस्ड हो गया है, इट अपियर्स लाइक दैट। देन ऑब्वियसली मैलर प्रोमिनेंस इज देयर। हम जो मैं पहले बोल रहा था कि मैलर बोन जो है उसका जो वो भी थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि मैरो हाइपरप्लासिया होता है। और एंड देन ऑब्वियसली नाउ दिस इज फाउंड इन केस ऑफ बीटा थैलासेमिया मेजर। जो लोग सफर करते हैं बीटा थैलासेमिया मेजर में, मेजर का पेशेंट में उसी को मिलेगा, क्योंकि थैलासेमिया माइनर में आपको इतना ये सारा चेंज नहीं मिलेगा। तो और थैलासेमिया ट्रेट में भी नहीं मिलेगा, मगर बीटा थैलासेमिया मेजर का जो पेशेंट है उसमें आपको मिलेगा। अगेन हाइपरटेलोरिज्म ऑफ आईज विथ मंगोलियन स्लैंटिंग ऑफ आईज यहाँ पे मिल जाएगा। देन माइल्ड इक्टेरिक टिंज, एज बिकॉज इसका जो आरबीसी जो है वो डिस्ट्रक्शन बहुत रैपिडली होता है, एंड वो फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन लोगों को लेना पड़ता है जो बीटा थैलेसेमिया मेजर में सफर कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, तो बिकॉज ऑफ एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसी, तो उसमें तो माइल्ड इक्टेरिक टिंज वहाँ पे आ जाता है। एंड ऑब्वियसली अपर बाल्बर कॉन्जंक्टिवा में ये मिलता है, और लोअर पैल्पेब्रल कॉन्जंक्टिवा में क्या मिलता है, पेलोर मिलता है, क्योंकि इसका खून का शिकायत है इसमें, इसलिए। नाउ देन डेंटल मैल ऑक्लूशन विद प्रोमिनेंट अपर इंसाइजर्स, जो नीचे वाला तस्वीर जो है उसमें यहाँ पे देखा हुआ है, ये अपर इंसाइजर जो है प्रोमिनेंट हो जाता है। लगभग जो मुंह का जो अपियरेंस होता है वो एक स्क्विरल की तरह होता है, जो वाइल्ड लार्ज अमेरिकन वाइल्ड स्क्विरल जो होता है उसका अगर हम देखेंगे, तो उसका जो जिस जिस जैसा फेशियल अपीयरेंस है उसी का फेशियल अपीयरेंस है। चिपमंक मींस एक्चुअली लाइक दैट स्क्विरल। ओके। तो उसी के चलते हुए ये चिपमंक फेसिस देखने से ही हमको पता चलेगा कि नाउ दिस पर्टिकुलर पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम दिस बीटा थैलेसीमिया मेजर और थैलेसीमिया, अगर ये पेशेंट है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे डाउन सिंड्रोम फेसेस। नाउ डाउन सिंड्रोम और ट्राइसोमी 21 ये भी हम लोगों को यहाँ पे मिलता है। डाउन सिंड्रोम एल्डरली अगर, क्योंकि हम लोगों का अभी ये होता है कि पहले तो शादी वगैरह बहुत जल्दी जल्दी हो जाता था, अभी बिकॉज करियर डेवलपमेंट के लिए, करियर इसमें ये करने के लिए, ये फिर शादी का जो उम्र है
ये उम्र ज्यादा हो जा रहा है, और माँ का जो होने वाली जो माँ है, अगर उसका उम्र ज्यादा है तो ऑब्वियसली पेशेंट हैज अ, क्योंकि आफ्टर 34 35 और 36 इसका चांस जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है। और पिता का उम्र, होने वाला पिता जो है, अगर उसका उम्र ज्यादा हो रहा है तो उसमें क्या होता है, उसमें एडीएचडी आने का, या ऑटिस्टिक जो चाइल्ड है, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये होने का चांस ज्यादा हो जाता है। तो ये डाउन सिंड्रोम अभी फेयरली कॉमन है, हम लोग देख सकते हैं। इसमें भी देखिएगा, ये स्मॉल फ्लैट नोज, सॉरी, स्मॉल स्मॉल फ्लैट फेस, दैट्स माइक्रोसेफेली। इसका जो माथा जो है, उसका जो पूरा मुंडी जो है वो छोटा होता है इन कंपैरिजन टू हिज फिजिक और उसका जो बॉडी। नाउ दीज आईज जो होता है, ये नीचे वाला तस्वीर से ज्यादा आपको अच्छा पता चलेगा, अपवर्ड स्लैंटिंग ऑफ आईज इसमें होता है। फिर इनमें भी देखिए लो सेट्स ऑफ ईयर, जो कान जो है वो नीचे, आप ऊपर का वाला तस्वीर से देखिए, अगर आईब्रो से आप एक लाइन खींचेंगे पीछे की तरफ तो देखिए वो ऊपर से जा रहा है, और जो ईयर जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये लो सेट्स ऑफ ईयर है, एंड ईयर इज बेसिकली स्मॉल एंड डिस्प्लास्टिक समटाइम। एंड इसका जो पैलेट जो होता है, अगर ये आप मुंह के अंदर आप देखेंगे तो देखेंगे इसका पैलेट जो है वो पैलेट थोड़ा हाई आर्च पैलेट है। हम्म, ये फिर आपको, ये हम लोग जैसे देखते हैं कोई माइमेटिक डायग्नोसिस के लिए हम लोग जो फिर देखते हैं कि अगर है कि नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली डाउन सिंड्रोम फेसिस इज नॉट एवरीवन इज हैविंग डाउन सिंड्रोम फेसिस। बहुत सारा पेशेंट ऐसे भी हैं जिसमें ये हाई आर्च पैलेट आता है, मगर डाउन सिंड्रोम में ये इसमें मिलता है, हाई आर्च पैलेट है, उसके उसका संग स्मॉल टीथ होता है। और इसके संग संग इसका जो होता है, हमेशा मुंह इसका खुला रहता है, और उसका जो जवान जो है वो बाहर की तरफ रहता है, ठीक है, वो टांग प्रोट्रूड आउट करते हैं बिकॉज ऑफ माइक्रोग्लॉसिया, एंड दैट एक्चुअली गिव्स अ इडियोटिक लुक। सो दैट इज द फीचर्स ऑफ डाउन सिंड्रोम फेसिस। ये डाउन सिंड्रोम फेसिस, ये फेसिस देखने से डाउन सिंड्रोम आपको पता चलेगा। एक पेशेंट अगर आपका ओपीडी में, या आपका आईपीडी में, या आपका चेंबर में, क्लिनिक में अगर वो चल के आ रहा है, अब उसका बिहेवियर, उसका जो कॉर्पोरियल एज, उसका फिजिकल एज जो है, और उसका जो मेंटल एज है वो मिसमैच रहेगा। उसका जो एक्टिविटीज जो रहेगा, इट विल नॉट बी दैट मच मैच्योर्ड। और इवन अगर वो छोटा भी है, अगर उसका फेशियल एक्सप्रेशन अगर आप देखेंगे तो आपको पता चला जाएगा। उसके संग संग उसका जो हाथ का जो अगर 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 आप देखेंगे तो उसमें जो क्रीज जो है, ऑब्वियसली अगर उसके तरफ आप देखेंगे, उसका जो फिंगर्स जो है वो अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको फिर यू कैन कम टू अ conclusive diagnosis that is this is a case of Down syndrome. This thing. Now next, यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं तो मास्क फेसेस, मास्क फेसेस मिलता है, बहुत सारा पेशेंट जो है मास्क फेसेस में अभी आ रहे हैं। और ये देखिए ऊपर वाला जो तस्वीर है, इट्स अ वेरी फेमस पर्सन हु इज नोन एज माइक, yeah, not this thing, but this is Muhammad Ali, Cassius Clay. Muhammad Ali was a very renowned boxer. He used to suffer from Parkinsonism because of punch drunk syndrome that we say. Those who are boxer, they used to develop this particular disease condition because of repeated hammering on their face and head during the sparring in the boxing dojo. तो इसमें ज्यादा होता है। और बहुत सारा पेशेंट है दोज आर दो जिसमें ये पार्किंसनिज्म भी अब अभी बहुत सारे पेशेंट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, आते हैं। तो उनको क्या होता है विथ टाइम, उसका हम पहले जमाने में पार्किंसनिज्म को हम लोग बोलते थे आर्ट सिंड्रोम, ए आर टी, मगर सिम्टम जो आते हैं TAR करके आते हैं, ट्रेमर, एटिक्सिया एंड रिजिडिटी। एंड ऑब्वियसली उसमें ये फेशियल एक्सप्रेशन जो होता है वो वैकेंट हो जाता है और इडियोटिक होता है। एट मींस द फेशियल मसल का जो मूवमेंट है, मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग दे कैन नॉट एक्सप्रेस। जो एज पहले जो मैंने बोला था कि फेस जो है, फेस इज द मिरर ऑफ माइंड। तो मन में क्या चल रहा है वो फेस में आ जाता है। मगर इसका जो, क्योंकि ये क्यों आता है, क्योंकि फेशियल मसल्स जो है, उसका जो उसका जो संचालन होता है, या हम लोगों का जो आंखें हैं उसका जो मूवमेंट होता है, इन सारे चीजों से हम लोगों को पता चल जाता है कि उसके आदमी का अंदर क्या चल रहा है। मगर इन लोगों का क्या होता है, बिकॉज ऑफ द दिस रिजिडिटी एंड एटिक्सिया, ऑल दिस थिंग, तो इसमें क्या होता है, ये लोग इसका जो एक्सप्रेशन जो है ये नहीं कर पाते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस
आर्ट सिंड्रोम और पैरालिसिस एजिटेंस और पार्किंसनिज्म, ये दूसरा जो चीज में मिलता है, इट्स वेरी लेस कॉमनली, बट दैट इज डबल फेशियल पैरालिसिस। अगर डबल दोनों तरह का फेस, यूजुअली वन साइडेड होता है, मगर ये अगर दो बोथ द साइड में अगर हो रहा है तो उसमें डबल फेशियल पैरालिसिस हम उनको बोलते हैं, तो उसमें भी मिलता है। और फेशियल मसल मायोपैथी ये इतना ज्यादा पेशेंट में नहीं मिलता है, मगर हाँ, मगर हम लोग को जो मिलता है पार्किंसनिज्म के बाद सेकंड, वो है स्क्लेरोडर्मा। इफ नीचे वाला जो पेशेंट है ये स्क्लेरोडर्मा वाला पेशेंट है, इसका जो अगर तस्वीर अगर आप देखेंगे तो इसमें ये स्क्लेरोडर्मा का पेशेंट, और ऊपर वाला जो पेशेंट है ये ऑब्वियसली यू कैन, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ये पार्किंसनिज्म का पेशेंट है। नाउ इसके संग नेक्स्ट हम मूव करते हैं। देखिए वो वैकेंट लुक वाला जो हम बोल रहे हैं, एक्सप्रेस इज एक्सप्रेशन वैकेंट, तो इसमें भी बहुत थोड़ा ड्रग वगैरह दिया हुआ है, मगर ये पार्किंसनिज्म अगर हम देखेंगे, पार्किंसनिज्म के अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग देयर आर सो मेनी ड्रग्स, सो प्लीज डोंट गो बाय द नेम ऑफ द ड्रग। व्हाट आई हैव, मेरा इंटेंशन, मेरा मतलब जो था कि ये वाला जो ये है जो हम बोल रहे हैं वो रेपर्टरी में है, वो तो केन का रेपर्टरी में है। अगर कंप्लीट रेपर्टरी में अगर अगर सिंथेसिस में जाएंगे तो उसमें भी डेफिनेटली होगा, मगर यू नो हाउ टू जुडिशिया, हमने जुडिशियसली हम रेपर्टरी का कैसे यूज करें। मून फेसिस, ये मून फेसिस हम लोगों को बहुत मिलता है, और मून फेसिस की अगर कोई पेशेंट आ रहा है मून फेसिस लेके, तो हमें थोड़ा तो सावधानी बरतना है, क्योंकि मून फेसिस अगर ज्यादातर बच्चे का अगर है तो उसमें हम लोग को थोड़ा ज्यादा कॉशस रहना होगा, क्योंकि मून फेसिस जो है इनका एक वेरी कॉमन फीचर यहाँ पे जो आता है वो बच्चे के लिए, वो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, सो नेफ्रोटिक सिंड्रोम और पीएसजीएन इज अ वेरी कॉमन थिंग, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोक्कल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हम लोग काफी देखे हैं जब हम लोग इंटर्न थे उस टाइम में, क्योंकि ये स्ट्रेप्टोकोक्कल अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो अब बहुत ये एडल्ट में भी आता है, और एडल्ट में भी बहुत सारे पेशेंट में आता है ये। मैंने हम लोग का वहाँ पे एक देखे थे, एक पेशेंट वहाँ पे आए थे। He was around 28 years of male patient. He had a history of, उसका जो था उसका पहले स्किन का एक लीशन था, और स्किन का लीशन के लिए दैट दैट ऑब्वियसली स्किन लीशन जो था दैट वाज एब्सेस। वो एब्सेस कोई लोकल होम्योपैथ डॉक्टर वो ट्रीट कर रहा था, और एब्सेस में उसका बाद में वो सडनली उसका यूरिन आउटपुट कम होने लगा और फेस फूलने लगा। ये तो ऑब्वियसली ही वाज डायग्नोस्ड एज, उसका जो एक्यूट रेनल फेलियर की तरफ जा रहा था, तो पीएसजीएन उसका बाद में फिर डायग्नोसिस हुआ। वो स्ट्रेप्टोकोक्कल पोस्ट स्ट्रेप्टोकोक्कल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और स्ट्रेप्टोकोक्कल उसका स्किन जो इन्फेक्शन जो था उसमें ये था। तो अगर ऐसे पेशेंट अगर आप देख रहे हो कि जिसको स्ट्रेप्टोकोक्कल इन्फेक्शन है, स्ट्रेप्टोकोक्कल सोर थ्रोट है, स्ट्रेप्टोकोक्कल स्किन इन्फेक्शन है, तो थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए हम लोगों को। और नेफ्रोटिक सिंड्रोम का पेशेंट आता है, और ऑब्वियसली यू नो सम फ्रॉम प्रोटीनूरिया एंड अदर थिंग्स, आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ ऑल दिस थिंग, तो ये आपको पता चलेगा तो वहां से आ जाएगा। फिर एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस विद पेरीऑर्बिटल इडीमा अगर पेशेंट को हो रहा है तो उसमें भी ये कुछ मून फेसेस आता है। कुशिन सिंड्रोम, इसमें तो ऑब्वियसली जैसे हम लोग बोल के आए हैं तो उसमें ये आएगा। आर्ट्रोजेनिक भी ये होता है मून फेसिस, क्योंकि बहुत सारा अभी जैसे कि मान लीजिए अभी हम लोगों का यहाँ पे ऑटो इम्यून डिजीजेस बहुत सारा हो गया है, और जहाँ पे और इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी चल रहा है, और किसी किसी का ऐसे होता है जिसको प्रोलॉन्ग स्टेरॉयडल स्टेरॉयडल थेरेपी अगर किसी को चल रहा है बहुत सारा, तो अगर स्टेरॉयडल कोई भी स्टेरॉयड ग्रुप ऑफ ड्रग बहुत टाइम से ले रहा है तो उसमें ये ऐसे हो सकता है, कॉर्टिकोस्टेरॉयडल थेरेपी अगर चल रहा है तो। और समटाइम्स इन केस ऑफ एंजियोजेनेटिक एडिमा ऑफ फेस, एंजियोजेनेटिक एडिमा जैसे जिसमें अगर कोई शेल फेस या कोई क्रैब्स, और इसमें कोई टॉर्टोइज का जो ये है वो खा लेते हैं फिर वो, बट ऑब्वियसली एंजियोजेनेटिक एडिमा यू कैन हैव द हिस्ट्री ऑफ, एंड ऑब्वियसली the presentation is very acute, so you can easily diagnose this thing. And myxedema, now myxedema is again this moon faces, ये नीचे वाला जो पेशेंट का जो तस्वीर है, ये पेशेंट हम लोगों का ओपीडी का ये था, ये मैं जब डीएनए में था वहाँ पे ये पेशेंट आए थे, एंड दिस वाज अ केस ऑफ myxedema। ऑब्वियसली एडल्ट में अगर दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर हाइपोथायराइडिज्म इन केस ऑफ एडल्ट, दिन ऐसे होता है ना, ऑब्वियसली मिक्सोमेटस टिश्यू यहाँ पे ये, इसका देखिए इसका जो फेशियल अपीयरेंस जो है ये इसमें पूरा मून फेसेस या जैसे फुल मून की तरह एक पूरा गोल
मुंह बना के ये लोग आते हैं. So next time coming to this one, this hepatic faces. Again, this is a somewhat Hippocratic faces के तरह ये देखने में लगता है, ये लगेगा. फेस लुक्स लाइक हिपोक्रेटिक फेसेस, एंड ऑब्वियसली along with that उसमें क्या रहेगा, इसमें थोड़ा माडी कॉम्प्लेक्शन रहेगा. ओके. And with yellowish tinge in the upper bulbar conjunctiva, because hepatic faces, that means ये नाम से पता चल रहा है कि इसका लीवर का तकलीफ जो है ये जिन जिन लोगों का है, और ऐसा कि नहीं कि एक्यूट कोई कंडीशन में, फिर से क्रॉनिक लीवर डिजीज. क्रॉनिक लीवर डिजीज मैंने क्रॉनिक परसिस्टेंट हेपेटाइटिस अगर कोई भी पेशेंट का अगर हो रहा है, मान लीजिए कोई पेशेंट अगर क्रॉनिक परसिस्टेंट हेपेटाइटिस विद हेपेटाइटिस सी वायरस से अगर कोई सफर कर रहा है, हेपेटाइटिस बी इतना ज़्यादा नहीं है बट हेपेटाइटिस सी, इसका एक प्रॉब्लम जो है हेपेटाइटिस सी, पहले तो सिम्टोमेटोलॉजी ऐसा कुछ नहीं देता है, बाद में जब आता है तो बहुत सारा डैमेज करके फिर वो मैनिफेस्टेशन फिर बाद में आता है. तो एंड हेपेटाइटिस सी अभी फिर भी अभी ज़्यादा पाते हम लोग मिलता है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है. हेपेटाइटिस बी ज़्यादा मिलता है, मगर हेपेटाइटिस सी भी यहाँ पे मिलता है. सो क्रॉनिक परसिस्टेंट हेपेटाइटिस अगर है, alcoholic hepatitis, those who have history of taking alcoholism, बेसिकली कंट्री लिकर जो है वो अगर कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं तो उसमें फिर एल्कोहलिक हेपेटाइटिस, इनिशियली वो एल्कोहलिक लिवर डिजीज, उसके बाद वहाँ से फिर इनिशियली हम लोग बोलते हैं दैट इज उसके बाद नैश आता है. दैट मीन्स पीपल दोज आर सफरिंग फ्रॉम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, बाद में वो जब नैश और नॉन अल्कोहलिक स्टियाटोहेपेटाइटिस जब होता है, फिर भी उस पेशेंट में भी ये हो सकता है. और सिरोसिस ऑफ लिवर लिवर का अगर कोई पेशेंट है तो सिरोसिस ऑफ लिवर में ये हो सकता है. सिरोसिस ऑफ लिवर के लिए एक चीज मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि मैंने मेरा एक थोड़ा एक चीज बोलना मैंने एक अराउंड 54 ईयर्स एक एजेड लेडी वहाँ पे आए थे हम लोगों को ओपीडी में, और उनका ऐसे हेपेटिक फेसिस, शी वाज हैविंग हेपेटिक फेसिस, एंड ऑब्वियसली शी वाज having the other features of the generalized edema like features, and obviously cirrhosis of liver का other जो features है वो पूरा डेवलप नहीं किया था, मगर उसका जो जनरलाइज इडिमा का जो फीचर्स, वो दैट मीन सेंट्रल इडिमा एंड देन डिस्पर्सिंग टू एंड फॉर्मिंग टू जनरलाइज इडिमा, एंड अदरवाइज फ्लैटुलेंट डिस्पेप्सिया, लॉस ऑफ बॉडी वेट एक्सेट्रा, ये हो रहा था. तो उसका जो है वो यूएसजी हम लोग ने जब करवाया उसका सिरोसिस निकला, मगर ना ना वो तो ना ही तो वो ये पीते थे कि अल्कोहल पीते थे, ना ही उनका और कोई हेपेटाइटिस बी प्रोफाइल वाज नॉर्मल, हेपेटाइटिस सी प्रोफाइल वाज नॉर्मल, ही she didn't have any kind of this thing, other disease. पर उसका जो हेपेटाइटिस था, वो हेपेटाइटिस वाज बिकॉज ऑफ ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस. ये मैं क्यों बोलना चाह रहा हूँ कि ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस का पेशेंट जो है ना वो मिल रहा है अभी, जो भी क्लिनिक्स कर रहे हैं. ये अगर लेडी के अगर हो रहा है तो ये ऑटो हम सिरोसिस मतलब ही हम सोचते हैं कि अल्कोहल के लिए, नहीं, अल्कोहल के लिए नहीं, नॉन अल्कोहलिक स्टियाटोहेपेटाइटिस में भी ये बाद में ये आ सकता है, सिरोसिस ऑफ लिवर भी बन सकता है. ठीक है, जो कभी भी अल्कोहल नहीं पिए हैं. देर आर सो मेनी क्लिनिकल कंडीशंस अदर लाइक दिस ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, इसमें ये हो सकता है. मैंने और एक बुजुर्ग महिला को मैंने देखा है जिनका जो बहुत बचपन में वो विधवा हो चुकी थी, और उसके बाद वो क्या करती थी, वो बहुत सारा ये उपवास वगैरह बहुत रखती थी, और उसके भी वो सिरोसिस हुआ था. एंड सिरोसिस बिकॉज शी हैड दैट सिरोसिस, दैट इज बिकॉज ऑफ एंड द टिश्यू एनॉक्सिमिया. क्योंकि ये सिरोसिस अगर हो रहा है तो दैट इज अ डिजेनरेटिव चेंज. सो डिजेनरेटिव चेंज मे बी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन, maybe because of degeneration, or this degeneration may be because of anoxemia also. Tissue anoxemia is a very common cause जो बहुत सारे उपवास वगैरह रखते हैं, बहुत सारा व्रत ये करते हैं, अगर तो उसमें भी ये हो सकता है. ये मतलब ये नहीं हर एक का होगा, मगर हो सकता है. सो जब आप पेशेंट देख रहे हो तो ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस के उसके बाद सिरोसिस या टिश्यू एनॉक्सिमिया के लिए सिरोसिस, ये एक बार जरूर याद कीजिएगा. ठीक है. और देखिए, मान लीजिए ये फेस येलो, दैट ऑब्वियसली दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ स्टेरोहेपेटाइटिस, और दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ हेपेटिक फेसिस, बट ऑब्वियसली इन केस ऑफ any kind of yellowish discoloration of face, we can think of that thing, this rubric we can think of. And obviously with all this thing, आज मेरा इतना ही था, मेरा जो बोलने का.
तो ओवरऑल जो मैं फिर बोलना चाहा, जो एक ही चीज, जो फेस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और ये ऑब्जर्वेंट फिजिशियन कैन फाइंड आउट सो मेनी क्लिनिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम फेस। थैंक यू। हाँ, थैंक यू सप्तश्री जी, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया है। अब अपना पीपीटी को हटा लीजिए, हाँ, एक मिनट, जस्ट स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए। हाँ, एक मिनट। हाँ, स्क्रीन शेयर बंद हो चुका है सर। हाँ, स्क्रीन, लेकिन आपका अभी स्क्रीन शेयर नहीं बंद हुआ है, आपका लैपटॉप का ये है, हाँ हाँ, अच्छा, उसको हटाना होगा। जस्ट मिनट सर। हो गया सर? नहीं, नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है। शेयर को बंद कर दीजिए। I have, ये तो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। Why? अभी गया नहीं है। हाँ हाँ सर, हाउ टू स्टॉप शेयर, यस डन नाउ। हाँ, स्टॉप शेयर, वीडियो, हाँ stop। हाँ, अब वो ये नहीं अभी कर आ रहा। गया, हाँ आपका वीडियो ऑफ है। हाँ हाँ, मेरा वीडियो आप है। थिंक हाँ, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा था, लोगों ने लाइक किया, हम लोगों ने काफी अच्छा लगा। और आ, खास करके बहुत समय में जब हम लोग को पेशेंट को सब्जेक्टिव सिम्टम्स बहुत नहीं मिलता है, तो उस समय में ये फेशियल एक्सप्रेशंस एक बहुत अच्छा आपको मैटर करता है बॉडी लैंग्वेज के रूप में। इसको तो मैं भी यूज करता हूँ। और रिपोर्टरी में फेस के अंदर में एक्सप्रेशन करके एक्सप्रेशन, चैप्टर है, हाँ, उसमें बहुत सारे मेडिसिन हैं, हर एक के लिए है दवा। तो एग्जैक्टली, टोटलिटी को देख करके हम लोग इसको कर सकते हैं। एकदम सर, एकदम। किन्हीं को और कुछ बॉडी पूछना लैंग्वेज इज है? ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस, और बॉडी लैंग्वेज के लिए मैं एक बुक में बोलना चाहूंगा, बॉडी लैंग्वेज बाय डॉक्टर एम बाय एलन पीज। एलन पीज बोल के एक बंदे हैं, उनका जो बॉडी लैंग्वेज का जो किताब है बहुत बढ़िया है। तो जो जी, स्टूडेंट्स जो है दे कैन रीड दैट थिंग, हाँ, ये एंड बड़ा ये बॉडी अच्छा रहेगा। लैंग्वेज से बहुत सारा चीज पता चल जाएगा। और क्योंकि आज मैं हम लोगों के यहाँ पे हुमायूं का जो ये है उसमें मैं अभी निकल जाऊंगा वहां पे, फिर जाना है मुझे दार्जिलिंग। पर एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, एक पेशेंट को मैंने यहाँ पे देखा है। मान लीजिए वो पेशेंट, ही इज वेल्दी एनफ, ही इज डूइंग अ सर्विस इन अ सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस, हैविंग अ गुड अमाउंट ऑफ सैलरी। उसका क्या है, वो उसका जब एक प्रॉब्लम था उसके लिए, वो यहाँ पे रिपोर्ट करने के बाद कहाँ कहाँ पे दिखाने जा रहा है ईएसआई हॉस्पिटल में, या और फिर वहां से मेरे पास आता है, क्योंकि वो ईएसआई वाला ने जो दवाई दी है उसका प्राइस है बहुत सारा है। तो देखिए माइजर, हम लोग जो माइजर सोचते हैं, माइजर जो हम लोगों का जो रेपर्टरी में एवरेज जो हम देखते हैं, and I actually give him lycopodium depending on that particular symptom. He had adenomyomatosis of gallbladder. Okay, the cometal appearance USG में था. Within 1 month, he recovered. So these kind of, I mean, Kane's repertory has hell lot of gems which we can use, and these kind of symptomatology, and obviously facial expression, body language। जैसे कैलकेरिया कार्ब अगर बैठेगा कोई चेयर में तो लगेगा कि कोई डो, एक आटे वाला, आटा का डो अगर आप रख दिए हैं, जैसे वो जैसे बैठता है वो कैलकुलेटर जब बैठेगा उसको पूरा जो फिजिकल जो है वो छोड़ देगा पूरा। ये जो हम लोग जो सैलिएंट फीचर्स देखते हैं, क्योंकि टोटलिटी मतलब तो ये नहीं कि पूरा केस टेकिंग के बाद जो आ रहा है, टोटलिटी मींस द एसेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल या जो हमको निकलना है। और वहाँ वो वही प्रिस्क्रिप्शन का ये जो पिवटल पॉइंट बन जाता है। सर बॉडी लैंग्वेज बुक का नाम बता दीजिए वापस। नाम जो है एलन पीज, एलन पीज, बॉडी लैंग्वेज बाय एलन पीज। सर, अमेजोन पे आप मिल इसको जाएगा। टाइप कर दीजिए, इनको टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। स्टार्ट सर। जस्ट अ मोमेंट सर। या तो थैंक यू डॉक्टर सप्तश्री जी, हम लोग इस सेशन को समाप्त करते हैं और हम लोग अब अंग्रेजी सेशन की ओर जाते हैं। सो ओवर टू यू डॉक्टर धनेश, यू कैन स्टार्ट योर सेशन नाउ।